Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have already completed 3 kingdoms. Now today we are going to take the next kingdom, that is Kingdom Plantae. ये जो Kingdom Plantae है, it includes all the types of plants. इसमें सारे plants आते हैं, चाहे छोटे होंगे या बड़े होंगे. And this kingdom is characterized by, इसमें क्या क्या character हैं? The Kingdom Plantae, it is a multicellular and they are photoautotrophs. ये सारे multicellular हैं और ये सारे हैं photoautotrophs. That means they perform photosynthesis. And important point in Kingdom Plantae is that they are non-motile eukaryotes. ये non-motile होते हैं. That means they cannot show locomotion except some algae. Algae के बगैर, कुछ algae के बगैर ये जो plants होते हैं ये locomotion नहीं दिखाते हैं and they are eukaryotes. अब जो ये Kingdom Plantae है, the Kingdom Plantae is divided into different groups. इसको divide किया गया है into different groups as we have studied the classification. The Kingdom Plantae is classified into different groups जिनको हम बोलते हैं divisions. ये जो Kingdom Plantae है इसको divide किया गया है into 5 divisions. अगर आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था kingdom. ये जो kingdom होती है जब इसको हम divide करते हैं या तो हम इसको बनाते हैं division या तो हम इसको बनाते हैं phylum. The kingdom can be divided either into division or into phylum. But you should remember one point. हम phylum उस टाइम बोलते हैं जब हम animals की बात करते हैं. जब हम plants की बात करते हैं तो उस टाइम हम यूज करते हैं division. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं Kingdom Plantae. So we use the term division. I will repeat again. The Kingdom Plantae is divided into 5 divisions. इसको divide किया गया है into 5 divisions. That is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. These are the 5 divisions of Kingdom Plantae. But you should remember an important point. जब हमने इनको divide किया है, हमने इनको divide किया है on the basis of evolution. इनको divide किया गया है on the basis of evolution. इसका मतलब हुआ कि पहले कौन सा ग्रुप आया है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आया है और उसके बाद कौन सा ग्रुप आया है. दैट मीन्स प्रिमिटिव ग्रुप कौन सा है और एडवांस्ड ग्रुप कौन सा है. हमने पहले कौन सा डिवीजन लिखा? थैलोफाइटा. दैट मीन्स जो थैलोफाइटा है इट इज प्रिमिटिव ग्रुप. उसके बाद आया है ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा और लास्ट में आए हैं एंजियोस्पर्म्स. दैट मीन्स द थैलोफाइटा इज a very primitive group while the angiosperms are the advanced plants. ये वाले plants advanced plants हैं. In nutshell we can say that the Thallophyta are the simplest plants which are having simple organization, while the angiosperms are the evolutionary advanced plants which have adapted in every type of habitat. We will take these plant divisions one by one. The first division is Thallophyta. Thallophyta जो है, the term means one is thallo and second is phyta. Thallo means thallus and phyta means the plants. It means that in case of Thallophyta, the plant body is thallus. इसमें जो plant body होती है वो thallus होती है. Thallus क्या हुआ? Thallus means that the plant body is not well differentiated into true roots, stems and leaves. इसमें true roots, stems और leaves नहीं होते हैं, इसलिए इस plant body को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं thallus. और जो Thallophyta है, the Thallophyta are commonly known as algae. इनको commonly हम algae बोलते हैं, which are mostly found in aquatic habitats. Aquatic habitats में पाए जाते हैं. Third point, ये जो Thallophyta होता है इनमें conducting tissue absent होता है. That means ये तो प्लांट छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें xylem और phloem absent होता है. So there is no conducting tissue in case of Thallophyta. और जो Thallophyta होता है, in case of Thallophyta the embryo is absent. इनमें embryo नहीं बनता है. और Thallophyta जो होते हैं इनका जो thallus होता है उसकी different forms होते हैं. Some algae are unicellular just like Chlamydomonas. Some algae are colonial just like volvox.
and some algae are filaments, just like Spirogyra. Clear? Now the second division is division Bryophyta. In case of Bryophyta, there is also the presence of thallus. Plant body जो यहाँ पे भी है वो भी thallus ही है, उसको हम बोलते हैं gametophyte. That is known as gametophyte. Second point, इनमें भी conducting tissue absent होता है क्योंकि ये plants भी छोटे होते हैं. ये plants भी छोटे होते हैं, so there is no xylem and phloem present in case of Bryophyta. But here is one important point. हमने बोला कि जो थैलोफाइटा होते हैं they are found in the aquatic habitats. लेकिन जो ब्रायोफाइटा होते हैं they are found in the terrestrial habitats. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लैंड पे पाए जाते हैं. ये लैंड पे पाए जाते हैं in the moist conditions. ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा को हम इंपॉर्टेंट नेम बोलते हैं. What is that? ब्रायोफाइटा are known as amphibians of plant kingdom. ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ये पाए जाते हैं लैंड पे, लेकिन इनको पानी की जरूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर इनको पानी नहीं मिलेगा देन दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. सो द ब्रायोफाइटा आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता था, इसमें एम्ब्रियो बनता है. इसमें एग्जाम्पल है मार्कनशिया, रिक्शिया, एंथोसेरास. नाउ द थर्ड डिविजन इज टेरिडोफाइटा. In case of Pteridophyta, there is no thallus because the plant body is having true roots, stems and leaves. इसमें roots भी होते हैं, stems भी होते हैं और leaves भी होते हैं. Number second important point, ये जो Pteridophyta है, in case of Pteridophyta, the conductive tissue is present. इसमें xylem भी present होता है and phloem भी present होता है. So we can call Pteridophyta as first vascular plants. First land vascular plants are Pteridophyta because in case of Pteridophyta the conducting tissue is present and in Pteridophyta the embryo is present. The embryo is formed. यानी कि इनमें embryo present होता है. क्लियर? यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो तीनों डिविजन्स हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनमें एक कैरेक्टर जो है दैट्स कॉमन टू ऑल दीज थ्री डिविजन्स. व्हाट इज दैट कैरेक्टर? दैट these all divisions do not form seeds. ये seeds नहीं बनाते हैं. They are seedless plants. They are seedless plants. इसलिए इनको बोलते हैं cryptogams. They are known as cryptogams. I will repeat again. The Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, these do not form seeds, so they are known as seedless plants, or they are known as cryptogams. Now the fourth division is gymnosperms and the fifth division is angiosperms. What are the different characters of gymnosperms? Gymnosperms जो होते हैं इनमें well developed root, stem और leaves होते हैं. और जो gymnosperms होते हैं ये बहुत बड़े plants होते हैं. इनमें tap root system भी present होता है. In case of gymnosperms the conductive tissue is present. इनमें जाइलम भी प्रेजेंट होता है और फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है. लेकिन इनमें क्या है, इनका जो जाइलम होता है, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है. आई विल रिपीट दिस पॉइंट. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स द जाइलम इज प्रेजेंट बट द वेसल्स आर एब्सेंट. इनमें वेसल्स नहीं होती. और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दे प्रोड्यूस द सीड्स. ये सीड्स बनाते हैं. इससे पहले हमने तीन डिविजन्स पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. उनको हमने बोला दे आर सीडलेस प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द सीड्स. बट ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे फॉर्म द सीड्स बट द सीड्स आर नेक्ड. वो नेक्ड होती हैं, वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं. इसमें आप एग्जाम्पल याद रखोगे पाइनस और सिड्रस, एस्ट्राइड्स. Now there is angiosperms. Angiosperms जो होते हैं इनको हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स क्योंकि इनमें फ्लावर्स बनते हैं. ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, इनमें कोन्स होते हैं. ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स
flowers are present, so they are commonly known as flowering plants. इनको flowering plants बोलते हैं. ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें सीड्स बनते हैं, बट दे आर नेक्ड. वो नेक्ड होते हैं, वो फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं. बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स. सीड्स जो होते हैं यहाँ पे दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो ओवरी होते हैं फ्लावर की, गाइनोशियम की, कार्पल की, दैट गेट्स मैच्योर्ड एंड दैट फॉर्म द फ्रूट. यानी कि फ्रूट जो होता है वो कहाँ से बनता है? वो बनता है ओवरी से. और जो सीड होता है वो बनता है फ्रॉम द ओव्यूल. तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इनको हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हमने जो पहले 3 डिविजन्स पढ़े उनको हमने बोले नॉन सीडेड प्लांट्स, या उनको हमने बोले क्रिप्टोगैम्स. और जो ये दोनों डिविजन्स हैं इन दोनों में सीड्स बनते हैं. इसमें नेकेड सीड्स बनते हैं, इसमें सीड्स होते हैं इनसाइड द फ्रूट्स. तो मगर दोनों में सीड्स बनते हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं, दे आर बोथ नोन एज phanerogames. They are known as phanerogames because they both produce the seeds. अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स, दैट इज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. नाउ आई विल शो all these 5 divisions in the form of a flow chart so that you can understand this topic very easy. This is our flow chart from which you can understand the kingdom planting and its classification very easily. This is kingdom planting. Kingdom planting is divided into 2 groups. One is that group in which embryo is absent. जिसमें embryo absent है. दूसरा वो वाला group है जिसमें embryo present है. एम्ब्रियो जिसमें एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा. थैलोफाइटा इज दैट डिवीजन इन विच एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड. और एम्ब्रियो जिसमें प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा. ये जो एम्ब्रियोफाइटा है इनको हम फिर डिवाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स. एक हो गया वो वाला ग्रुप जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, और दूसरा हो गया वो वाला ग्रुप इन विच वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट. यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू इज प्रेजेंट एंड कंडक्टिंग टिश्यू इज एब्सेंट. वो वाला ग्रुप जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा. हो गया दूसरा डिवीजन. दिस वाज फर्स्ट डिवीजन, दिस वाज सेकंड डिवीजन. और वो वाला ग्रुप जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं ट्राइक्योफाइटा. द ट्राइक्योफाइटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. एक हो गया वो वाला ग्रुप जिसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, दूसरा हो गया वो वाला ग्रुप जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो वाला ग्रुप जिसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा. हो गया थर्ड डिवीजन. और वो वाला ग्रुप जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू भी प्रेजेंट होता है और सीड्स भी बनते हैं उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम प्लांटिंग एंड इट्स 5 divisions. Hope you have understood this topic very nicely. We'll see you inshallah in next lecture with the kingdom Animalia.